Hello everyone, my name is Zumama Naeem Khan and I'm here with you to have the solution discussion and the paper analysis of slot 3, class 9 GTSC exam 2020. But before the discussion, आप सबने दिया ही होगा GTSC का पेपर. अगर अभी तक नहीं दिया है, then you can still attempt it in the next slot and the link is given in the description. Since I'm your physics faculty, I'll be discussing with you the solutions of the physics portion of the paper. Now let us proceed. Okay. On your screen is the first question. Pressure in a liquid increases with depth, but at a given depth it is equal in all the directions. Yes, what happens is when you calculate the pressure in a liquid, the formula to calculate the pressure is H d G. What is H? H is the height of the liquid from the surface, D is the density and G is acceleration due to gravity. So when H is same, at the same height, the pressure is going to be same, but when we go down, the pressure will increase. So first statement is correct. The pressure due to fluid is independent of cross section area of the conductor. Yes. What is the meaning of this thing? See, if there are two containers like this one and this one is 2. Okay, their shapes are different. Obviously, their area will also be different. Since the height of the liquid in both the container is same, then as we know that pressure in fluids depends upon what? Height, density of liquid and acceleration due to gravity. So it has nothing to do with area of cross section of the container. It is irrespective of the shape of the container. So this portion, the pressure due to fluid is independent of cross section area of the container, is correct. Okay. Atmospheric pressure increases as height above the level increases. No, it is going to decrease. Why this is happening? See, this is supposingly here. This is the Mount Everest, suppose. Okay? So the air column above the Mount Everest, suppose, is like this. But if you are standing on ground, the air column above your head will be like this much. So since the air column, the length of air column on your shoulder, on your head when you are on the ground is more, so the weight of the air will be more and so the pressure exerted will also be more. So when you go up, the pressure reduces. When you come down, the pressure is going to increase. So statement 3 is false. Okay. Upthrust on a floating block in a liquid is equal to the height of the liquid displaced by the block. No, it is equal to the weight of the liquid that is displaced by the block. So this is also incorrect. In the question we are being asked what are the sentences or the statements that are false. So according to us it should be 3 and 4. So answer should be option number D. Okay, answer is D. Okay, an electric current is passed through a conducting solution. The solution is conducting already. This is being told to us. Which of the following are observations and we have to tell that which of them are correct. Okay. Deposits of metal may be seen on the electrodes. Yes, this happens. This happens and you must have learned in your previous class, that is 8th class. Then whenever there is a solution which is conducting in nature, you put 2 electrodes. Then what happens? Deposition of one metal over the other metal is known as what? Electroplating. This happens in electroplating, bachcho. So this is correct, right? फिर solution may get heated up. Yes, absolutely right. Why? Because on the passage of current, heat is developed in the conducting solution. So this is also correct. This is also correct. Option number 3, bubbles of the gases may be formed on the electrodes. बिल्कुल सही. You have read about electrolysis of water. Electrolysis of water में क्या होता है? Hydrogen and oxygen are separated out. So in that bubbles of hydrogen and oxygen is formed. So this is also correct. So answer should be D, 1, 2 and 3. Okay. Which of the following are correct? Okay. Optical density and density of a medium are same. Absolutely wrong. Density of a medium depends upon mass per unit of volume, but optical density is a different thing. It actually gives you an idea about how the speed of the light is going to vary from traveling from one medium to the another medium. So these two things are absolutely different. Maximum value of speed of light can be greater than 3 into 10 to the power 8 meter per second. No. The maximum speed is of the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is also incorrect. More the value of mu for a medium, more is the optical density. What is mu? First thing, mu क्या होता है बच्चों? Mu is the refractive index, right? Refractive index. Refractive index होता क्या है? Refractive index is the ratio of speed of light in the first medium to the speed of light
इन द सेकेंड मीडियम। अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है किसी मीडियम के लिए, तो देखिए अगर म्यू की वैल्यू कब ज्यादा होगी बच्चों, व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस fraction is very high, and when the value of this fraction will be very high, when the value of v1 will be very high. So if there are two mediums, this is 1 and this is 2, and a light is passing from 1 to second, if the speed of light in first is v1, here it is v2. If v1 is greater than v2, v1 is greater than v2, then only mu का वैल्यू बहुत हाई होगा। और ये कब होगा बच्चों, फर्स्ट मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड बहुत तेज है, सेकंड में कम है। कब, जब सेकंड मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंस होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो आंसर नंबर सी इज योर आंसर। ओके, whenever the surfaces are in contact tend to move with respect to each other, the force of frictions come to play. Okay, only if the solid objects are solid, मतलब liquid होगा तो नहीं होगा क्या, गलत। only if it is liquid मतलब क्या, गैस और solid होगा तो नहीं होगा। Similarly this is also wrong. So irrespective of whether the objects are solid, liquid or gas, friction is going to play its part if two surfaces are in contact. Any two surfaces are in contact, gas, liquid, solid, with any two surfaces, the friction is going to be there. So option D is the answer. Okay. There are two mirrors that are placed at right angles to each other. Okay, number of images formed when the object O is placed. Okay, first of all, what is the formula to calculate the number of images formed? That is 360 by theta. मैम थीटा क्या है, थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज द एंगल at which the two different mirrors are inclined. This is mirror 1 and this is mirror 2. Absolutely we can see in the question also it is given, it is 90 degree. So here it will be 360 by 90. So 9 4s are 36. So answer will be 4. Now can you see n is equal to 4 and 4 is an even number. So whenever the number of images formed is even and the object is placed exactly between the two mirrors, then the answer will be n minus 1, that is 4 minus 1 is equal to 3. So answer should be B. Okay. A trolley is moving at a constant speed of 2 meters per second. The speed is constant. First thing that you need to understand and keep in your mind is the first word written here that you need to keep in your mind is constant speed. That means the speed is neither decreasing nor increasing. Zoya and Zishan began pushing the trolley at the same time from opposite directions as shown in figure. Both of them are applying a force of 15 Newton. Just understand. See, from here it is 15 Newton. एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो 15 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट विल बी 15 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। ये कौन सा केस है, ये बैलेंस्ड फोर्स का केस है, राइट। व्हेन द एफ नेट द resultant force or the net force is 0, then it is a case of balanced force. और balanced force में क्या होता है, if the body was at rest it will be in rest and if it was in motion, तो वो जितने स्पीड से चल रही थी वो उतने ही स्पीड से चलती रहेगी। तो स्पीड ऑफ द ट्रॉली आपसे पूछी गई है, it is going to remain same. Why? Because the forces acting on this body are balanced. Okay, this was all from physics. Now let us move to our next section, that is chemistry. हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी आप सब लोगों का जीटीएससी का स्लॉट 3 का पेपर होके चुका है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही अच्छा रहा होगा। सो आई योर केमिस्ट्री टीचर हियर एट GoPrep इज ब्रिंगिंग द सॉल्यूशंस। सो माय नेम इज आकांक्षा खंडेलवाल गाइस, और केमिस्ट्री के हम सारे क्वेश्चंस को जितने आपके जीटीएससी स्लॉट 3 में आए उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली बिगिन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड वाज कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 3 कंपाउंड्स गिवन है, उसमें से बताना है आप सबको कि ब्लीचिंग एजेंट इनमें से कौन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये तीनों ही ब्लीचिंग एजेंट हैं आपके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी गाइस। ये तीनों के तीनों ब्लीच करते हैं सब्सटेंसेस को, राइट। कलर जो जैसे कहते हैं ना, कलर आपका फेड कर देते हैं, फाइन, किसी भी क्लॉथ का या किसी भी फ्रूट वगैरह का, इन सब का। ओके, सो तीनों के तीनों वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड वाज बेस्ड अपॉन अलॉय। सॉल्डर के बारे में पूछ रहे हैं, यू हैव टू नेम द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट। So solder is made up of your tin and lead. So the correct answer for this is option B. Moving on to the next question, on adding dilute HCl to copper oxide, the solution is bluish greenish color. So simple reaction होती है इन दोनों के बीच में। तो आप लोग जब इन दोनों को react करते हो, so you get a substance that is your copper chloride. ठीक है, and copper chloride जो बनता है that is bluish greenish in color.
So you get copper chloride. Fine. That is what is bluish greenish in color along with पानी तो अलग से बनेगा ही, राइट. सो दिस इज देयर. सो ये जो है ये ब्लूइश ग्रीनिश कलर का होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस बिकम्स ऑप्शन सी. Similarly, the next question that you had was very typical simple question कि natural gas इस चीज की बनी होती है तो कैलोरिफिक वैल्यू नेचुरल गैस की कितनी होती है. यू नो वेरी वेल नेचुरल गैस को हम लोग अपने आजकल क्या यहाँ पे यूज कर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ए पोल्यूशन नहीं होता है, बी इट हैज गॉट वेरी हाई कैलोरिफिक वैल्यू, मतलब जब हम इसे बर्न करते हैं कितनी एनर्जी रिलीज कर, एंड इट रिलीजेस द हाईएस्ट अमाउंट दैट इज योर 55 किलो जूल्स पर ग्राम. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी. The next is the metal that reacts with hydrogen to form hydrides is. अगर आप सबको याद हो तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. हाइड्रोजन से ऊपर आपका कैल्शियम लाई करता है तो ऑब्वियसली कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, तो इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. वेयर एज ऑल द अदर सब्सटेंसेस बी इट मर्करी, कॉपर और सिल्वर, ये आपके हाइड्रोजन से नीचे हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी. The next that you had was when wood is used in चूल्हाs तो गैप्स क्यों होते हैं? So obviously हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें वहां पे कंबस्शन करना है. जो वुड हम यूज कर रहे हैं चूल्हाs में बच्चा उसको हमें कंबस्ट करना है, और कंबस्शन के लिए यू नो एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एयर उसके लिए रखा जाता है. तो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन ए फॉर दिस. The last question that you had was curing is the process of hardening the polymers. ठीक है, कौन सा ऐसा पॉलीमर जो हार्डन हो जाएगा? अगेन लॉजिक अगर लगाया होता तो आउट ऑफ ऑल दीज थ्री ओनली बेकलाइट इज द वन विच इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ठीक है, ये कैसा आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जिसमें आपके क्रॉस लिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसे हीटन अप करते हो हार्ड तो वो हार्डन हो जाएगा, राइट. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी. आई होप आप सभी का केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत ही अमेजिंग रहा होगा. जिन लोगों ने अभी तक जीटीएससी नहीं दिया है गाइस, सो क्विकली गिव द जीटीएससी. द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू. हेलो एवरीवन, और कैसा हुआ आप सबका जीटीएससी? आई होप अच्छा हुआ होगा एंड यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो द आंसर्स ऑफ द वेरियस क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द बायोलॉजी क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द बायोलॉजी पार्ट वाज take the two kharif crops. So what are the kharif crops? Kharif crops are crops which are mainly grown in the rainy season. ठीक है. So अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से याद किए होंगे तो आपको पता होगा सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स आदि खारिफ क्रॉप्स. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Moving to the next question, the question is asking who discovered the vaccine for smallpox. So एडवर्ड जेनर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले वैक्सीन लाया, और किस चीज के लिए वैक्सीन लेकर आया? वो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन लेकर आया. इफ यू टॉक अबाउट लुइस पास्चर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ पास्चराइजेशन. इफ यू टॉक अबाउट साक ने पोलियो का वैक्सीन दिया था, इसीलिए पोलियो के वैक्सीन को साक वैक्सीन भी कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज saying survival of some animals has become difficult mainly because of. So the question is saying mainly. ठीक है, and the options are disturbance in the rainfall, disturbance in their natural habitat, afforestation. Afforestation मतलब growing more trees. तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं. सो इफ यू टॉक अबाउट अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, सो इट विल अफेक्ट देयर सर्वाइवल मेनली. द ऑप्शन बी इज correct. Moving to the next question, the question is saying which of the following statement is true about the storage of produce. ठीक है, okay, so the first question is saying harvested grain have less moisture. No, they have ample amount of moisture. So moving to the next question, farmers store grains in the jute bags or metallic bins. Yes, farmers store. The third option is small scale storage of grain is done in silos and granaries. No, the large scale. So this option is incorrect. Then fourth, specific chemical treatments are required to protect crops from pests and microorganisms. Yes, we use pesticides, rodenticides. So the correct, so second and fourth, they are correct. So the correct option is C.
Moving to the next question, the question is saying, given below are the statements about the effect of weeds. So what are weeds? They are unwanted plants जो कि हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, ये अनवांटेड है, मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ठीक है, उनके साथ compete करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए। अब उनके साथ compete करेंगे तो उनके ग्रोथ को भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है, और अगर हमने इनको कट नहीं किया, हमने इनको रिमूव नहीं किया, तो ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इंटरफेयर करेंगे और ये प्लांट को हेल्दी ग्रो होने नहीं देंगे। सो द सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दी। नो, दिस इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज सेइंग दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। येस, दे डू इंटरफेयर, they compete with the crops. Yes, they are unwanted plants and they compete for it, hence they affect the plant growth. So first, third and fourth are correct. Moving to the next question, the offspring formed as a result of sexual reproduction. ठीक है, sexual reproduction is a mode of reproduction which involves two parents. ठीक है, तो जो characteristic आएगा वो दोनों parent का आएगा, ठीक है, exhibits more variation because, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग है उनमें ज्यादा चेंजेस, उनमें ज्यादा वेरिएशन क्यों रहते हैं? बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज के वो होने चाहिए, ह्यूमन, ठीक है, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग is controlled by which hormone? मेटामॉर्फोसिस मतलब जो चेंज आता है मॉर्फोलॉजी में, टेडपॉल से फ्रॉग जो कन्वर्ट होता है उसकी मॉर्फोलॉजी में ड्रास्टिक चेंज आता है। सो कौन सा हार्मोन उसको कंट्रोल करता है? सो थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, क्योंकि अगर वाटर जिसमें टेडपोल है अगर उसमें आयोडीन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। और आयोडीन कौन से हार्मोन के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। सो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इजी भी लगे होंगे। गुड लक। हे दोस्तों, हम लोग अपने मैथ्स वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो कैसा हुआ आप लोगों का ये मैथ्स जीटीएससी का पेपर? सो देखते हैं यार, इस पेपर को आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन स्केलिंग का क्वेश्चन है। आपने मैप देखे, भारत का मैप छोटे से पर्चे पे बना देते हैं तो स्केलिंग से ही बनता है ना वो, तो बिल्कुल सेम टाइप की स्केलिंग का क्वेश्चन है। बोला है कि 1 mm ओवर 5 मीटर का मतलब 1 mm जो मैप पे है वो 5 मीटर का एक्चुअल डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर के लिए कितना डिस्टेंस होगा? 1/5 mm डिस्टेंस होगा, सही बात है कि नहीं है? तो 75 मीटर के लिए कितना डिस्टेंस होगा? 75 मीटर मतलब 75 इंटू 1/5 mm का डिस्टेंस होगा, यही तो होगा ना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? सिंपल है ना ये क्वेश्चन, की नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार, इसमें मतलब मेरे को तो क्या बताना चाहिए आपको, किस नंबर से, बाय व्हाट नंबर शुड दिस डिवाइडेड, मतलब मान लिया x से डिवाइड करते हैं कि जो हमारा आंसर आए वो ये आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x को तो इधर ले जाते हैं, 1 बाई, ये हमको पता है ना यार, a बाई p की b की पावर अगर -n है तो हम उसे b बाई a की पावर n लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे इवन, एक और बात हमें पता है कि इसी चीज को हम 1 बाई a बाई b की पावर n भी लिख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा ये हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर, ओके ग्रेट, और ये माइनस के साथ नीचे आ जाएगा 2/3 का क्यूब। देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, पूरा कैलकुलेशन है फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऊपर वाले को आप सॉल्व कीजिए तो वो 4 का स्क्वायर 16/8 मतलब ऊपर बचेगा 2 माइनस का, और नीचे 9 स्क्वायर वो 81 आएगा नीचे, और ये 3 क्यूब 27 आएगा ऊपर, ठीक है। तो 3 बचेगा आई थिंक, है ना, -2/3। देखें यार कैलकुलेशन सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है यार, क्या बात है, देख रहे हो, है ना, ऐसे मैंने किया, हाँ वही सही है, मुझे ताऊ करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये तो सिंपल लग रहा है, किसी मैंने पहले कर रखा है शायद इसलिए मुझे सिंपल लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और ये माइनस में c स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी मतलब ये पूरा a है, और a प्लस b, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन देखो यार डायरेक्ट, है ना, a पहला ही ऑप्शन ऐसा है, पहला ही ऑप्शन ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वाह, है ना, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, ये आ रहा है 7 इंटू 11 प्लस 1 78 आ रहा है, मतलब बेसिकली। तो वैसे भी ये 2 फैक्टर हो गए तो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता,
इट इज कंपोजिट, है ना। नॉट कंपोजिट ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट है इसका आंसर, सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अतुल के पास 600 रुपए हैं 2 और 5 के कॉइन के रूप में, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन वगैरह वगैरह दुनियादारी जो भी है, यहां से इतना समझ में आ गया कि हम 2 रुपए की कॉइन को मानेंगे x और 5 रुपए की कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन मान लिया, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन जो हमारे पास है वो मान लिया x है, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन जो हमारे पास है वो y है। और हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के अपनी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जो भी हैं यहाँ पर ना, वो कॉपी ले पेन लेके बैठे, इवन वो खुद भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। मेरी कोई ऐसी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन प्लस 5 टाइम नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन मस्ट बी इक्वल टू 600। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। तो और हमें ये भी बोला है जो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन है उसका डबल 5 जो है वो 5 रुपी कॉइन से 30 ज्यादा है, ठीक है। तो इस हमारा बनेगा क्या यहाँ पे टोटल मिला के अगर हम देखें, ठीक है। अगर हम इसे देखें 5 रुपी कॉइन को हमें यहाँ पे x मानना पड़ेगा, जो 2 रुपी कॉइन है वो 2x प्लस 30 हो जाएंगे इसके इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो 2 इंटू 2x प्लस 30 प्लस 5 इंटू x मस्ट बी 60, ठीक है। 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। हम इसे 2 वेरिएबल में बना रहे थे यार, तो है ना। तो 2 टाइम्स 2 इंटू नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन 5 इंटू नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से हमारी ये चीज आ गई। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जाएगा 4x 5x 9x इक्वल टू दिस 60 आ जाना चाहिए यार x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू 60 आ जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लिया, ऐसे सिंपल ही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है। अगर हम इसमें बोला है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई, एक पैरेललोग्राम है ABCD करके, AC और BD डायगोनल्स हैं। चलो बहुत बढ़िया। बोला है एंगल DAC हमें दे रखा है 32 डिग्री, ठीक है। इसे मान लेते हैं DAC, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना कि सर आपको कुछ नहीं आता है, ये सर क्या कर रहे हो आप, है ना। ऐसे नहीं बोलना, है ना। चाहे सर थोड़ा गलत भी करते हैं पहली बार में। तो DAC, मजाक कर रहा हूँ यार, बोल लो यार तुम। तो DAC हमारा ये O एंगल है ना, AOB, O को देख के समझ में आया मुझे, ये है 70 डिग्री एंगल। एंगल DBC हमें बताना है, ठीक है। एंगल DBC हमें बताना है। तो कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर कोई बच्चा है जो इस बात को थोड़ा सोच सकता है, कैसे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे AD और BC क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जो ACB एंगल होगा, जो ACB एंगल होगा वो भी 32 डिग्री होगा। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला एंगल भी 32 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल, ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 70 मतलब 110। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, मतलब 32 प्लस 110 प्लस जो एंगल हमें निकालना है DBC, इसकी वैल्यू होगी 180, ठीक है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे DBC को तो वो आ जाएगा 38 डिग्री, ठीक है। वो आ जाएगा 38 डिग्री। मैं हट जाऊं थोड़ा सा जी, तो वो आ जाएगा 38 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा इनकरेक्ट है? इरेशनल नंबर कोई है -√2, उसका नेगेटिव तो इरेशनल ही होगा, ये ठीक है यार। सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, ये इरेशनल है, ये भी ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, 2 इंटू मान लिया √3 करते हैं तो ये भी इरेशनल होगा, ये भी ठीक है यार। तो ऑब्वियसली यही आंसर हो जाएगा, यही गलत होगा बिना पढ़े, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। 2 इरेशनल नंबर का डिवीजन, मान लिया एक इरेशनल नंबर है √2, दूसरा इरेशनल नंबर है माइनस का 2√2, इनका डिवीजन रेशनल हो सकता है यार, ये रेशनल होना जरूरी नहीं है, तो यही गलत है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? डी इनकरेक्ट है। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। बोला है बहुत सारे कॉइन्स हैं, सबकी रेडियस जो है वो 0.75 है। थिकनेस जो है, मतलब सिलेंडर हो गए अगर थिकनेस दे रखी है तो 0.2 सेंटीमीटर है। मेल्टेड टू मेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस 3, ठीक है। तो अच्छा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h,
ठीक है। तो पाई आर कितना है यहाँ पे 3 स्क्वायर, एच कितना है यहाँ पे 8, ठीक है। ये तो हो गया टोटल वॉल्यूम। अब मान लिया n कॉइन्स है, मान लिया n कॉइन्स है, तो हर कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि हर कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, यही देखना पड़ेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो आप इसको भी ऐसे ही निकालोगे, दिस इज आर एंड दिस इज एच, ठीक है। इसे R1 और इसे H1 बोल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, मतलब क्या हो जाएगा पाई 0.75 का स्क्वायर, कैलकुलेटिव है यार, इंटू 0.2। तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, मतलब इसे n को मैंने बोल दिया नंबर ऑफ कॉइन्स, सॉरी यार इधर उधर लिखने के लिए, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मुझे माफ करना, वो इस वाले वॉल्यूम को डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको अलग से लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा पाई 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.2, ये नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। सही बात है कि नहीं है? हर जितना टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का, एक छोटे कॉइन के वॉल्यूम से हमने उसे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ कॉइन्स उतने ही होंगे ना यार, इतने कॉइन हमें चाहिए। सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा यार, इसे सॉल्व कर लेना यार, अब कैलकुलेशन मत कराओ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। यार ये तो साफ दिख रहा है, ये 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, ये भी साफ दिख रहा है, ये 5 होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 0.1 0.5 होगा यार, इतनी टेंशन नहीं है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो क्या लोगे आप, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, इसको ध्यान से देखा, 125 जो होता है वो 5√5 बोल सकते हैं ना, 5 इंटू 25 होता है। 3√5 प्लस 5√5 इज लाइक 8√5 इज इक्वल टू 17.88, ये दे रखा है, मतलब √5 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ली हमने, वो क्या निकाल ली 17.88 डिवाइडेड बाई 8, और ये वैल्यू ये क्या होता है 16 पंचे 80, मतलब ये हो गया 4√5 प्लस 6√5, ये हो गया 10√5, ठीक है। तो √5 की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी, मतलब 178.8 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, 10 से भी मल्टीप्लाई किया ना। इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाना चाहिए जी। तो √5 की वैल्यू निकाली फर्स्ट से और सेकंड में पुट कर दी, बस इतना क्वेश्चन है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है यार, है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ कैलकुलेटिव है। एक पॉलीगन के 27 डायगोनल्स हैं, वैसे तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और मैंने क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। तो एक पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो ये होते हैं, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, है ना, हुज साइड, जिसकी n साइड्स है, रेगुलर पॉलीगन है इसकी n साइड्स हैं, ये हो गया, ठीक है ना, n पॉलीगन किसी भी पॉलीगन की वैसे तो ये हमें 27 दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि इसकी साइड्स कितनी होंगी, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देख लो कि कौन सा ऑप्शन से ये आ रहा है। दूसरा ये है सिंपल, देखो मैं एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको इसे सॉल्व करने का, वैसे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आ जाता है ये, लेकिन सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, 54 है तो आप इसे n इंटू n-3 की फॉर्म में लिख दो किसी तरीके से, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, 9 3 27, 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो हमें पता लग रहा है n कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं 9 को यहाँ पे, तो 9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया यार, ये पीएनसी से ड्राइव होता है, आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कहोगे सर काउंट करके क्या होगा, यार काउंट करके ये होगा कि जैसे आपका रेक्टेंगल से काउंट करना शुरू करो, उसके 2 डायगोनल है, ठीक है। फिर पेंटागन का डायगोनल्स काउंट करो, टोटल की कितने डायगोनल्स हैं, ठीक है, टोटल डायगोनल्स काउंट करो जी। फिर उसके बाद हेक्सागन के डायगोनल्स काउंट करो, तो एक पैटर्न बनेगा और वो पैटर्न इसे फॉलो करेगा, ठीक है। अभी 9th क्लास में तो हम पैटर्न फॉलो करवा के कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 11th में हम पीएनसी से बड़े इजीली ड्राइव हो जाता है NC2-n करके, ठीक है। तो चलो अभी तो इसे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, यहाँ पर g की वैल्यू बतानी है, t की वैल्यू दे रखी है। 64 एक्चुअली क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है ना। इसे हम 8 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना यार, 8 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 क्यूब अगर इसे फॉर्म पुट करूँ, यहाँ पे क्यूब पुट करूँ तो ऐसे, और यहाँ पे -1/2 पावर है तो यहाँ पे मैं 8 स्क्वायर करके पुट करता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करो, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कराना है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कराना है। तो 4 स्क्वायर हो गया 16,
प्लस ये हो जाएगा 4/8, 4/8 इज लाइक 1/2, तो 33/2 आ रहा है यार मेरा तो, है ना, 33/2 आ रहा है जी। तो सिंपल पुट कर दो यार वैल्यू, और कुछ नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा। अगेन लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट बनाना है हमें, यहाँ पे पेयर बनाते रहते हैं, करा है कभी आपने ये सब? 8th क्लास में करा होगा ना यार, 8th क्लास में किया है, 2 + 2 4। 8th क्लास में किया है कि नहीं किया है ये सभी बच्चों ने, एक बार बोल दीजिए। 8th क्लास में क्या सभी बच्चों ने लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाला है या नहीं निकाला है ना? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर कैसे बोलेंगे, तो रिकॉर्डिंग है, तो ऐसे ही मन में बोल दो यार एक बार, तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि इसे स्क्वायर रूट बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे वैसे तो आप ये भी सोच सकते हो, एक तरीका ये भी, हमें पता है 529 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 8 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात आप ऐसे सोच सकते हो कि यार यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, 43 ले लें तो कोई बात बनेगी। 43 लोगे तो 43 इंटू 3 क्या होता है, 9 12 129, तो यार यहाँ पे 129 होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे तो अब 42 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 129 मतलब इसमें अगर 8 और होता तो ये होता परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 8 ही आएगा यार इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, यार पहले आंसर पहले लिख देते हैं। ऑन सेलिंग 100 पेन्स अ मैन गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, तो हमारा गेन परसेंट क्या होगा, ठीक है। अब यार ऐसे क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे हम वेरिएबल मान सकते हैं, लेट x बी अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन क्या हो जाएगा, 100x, ठीक है। इसे मुंह जवानी नहीं करते, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। तो x जो है वो सेलिंग प्राइस है 1 पेन का, तो 100 पेन्स का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 100x, और गेन परसेंट क्या हो जाएगा 20, तो मतलब इसका 20 पेन्स का सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स 20x हो जाएगा, है ना। मतलब गेन ऑफ 20 पेन्स इज 20x, वी कैन से गेन ऑफ 20 पेन्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन हमें बताना है, तो गेन ऑफ 20 पेन्स इज 20x। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस गेन, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम यहाँ पर बोलें तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ता है, वो हो जाएगा 100x माइनस 20x, मतलब वो हो जाएगा 80x, ठीक है कि नहीं है। अब गेन परसेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला हम बहुत बार आपको बोल चुके हैं, गेन इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे गेन हो गया 20x, 100 बाय 80x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमने, x से x कैंसिल, 20 ये 4 टाइम्स 25 आ जाएगा ना, 25%। आंसर सही है क्या? बिल्कुल सही है ना, 25% इज द आंसर। अब ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें ना हमें पहले से ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। एक कॉर्ड है, मान लिया उसकी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है, एट द सेंटर इज, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगा अगर लेंथ रेडियस के इक्वल, ठीक है। अच्छा सिंपल बताओ यार कि ये 90 है तो ये r/2 होगा, सही बात है कि नहीं है? सही बात है। तो क्या इस वाली लेंथ को हम निकाल सकते हैं, इस वाली लेंथ को हम निकाल सकते हैं? हाँ यार पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इस वाली लेंथ को निकालने की जरूरत है हमें? यार ये भी तो r है और ये पूरा r है, और ये तो बहुत ही शानदार बात है, इस वाली लेंथ को निकालने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या बन रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है भाई। सोचो किसी सर्किल में ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, मैंने सोचा था इनके ये निकाल के हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगा देते हैं, बट जरूरत ही नहीं है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 होगा यार, सीधे सीधे 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 50। अच्छा मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें मोड माइनस मीडियन दे रखा है 50, और हमें डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
यहाँ पर यार हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने ना एक फॉर्मूला मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ है कि मीडियन के लिए, मीडियन क्या होता है, बीच वाला, एटलीस्ट 3 चीजें चाहिए। तो 3 मीडियन है ना, कम से कम 3 चीजें चाहिए ताकि बीच वाला निकाल सके। 3 मीडियन, 3 इक्वल टू 2 + 1 से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, जैसे मैंने याद रखा है 3 मीडियन इक्वल टू। अब मोड के लिए क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा है। तो मोड मोड भाई एक आदमी भी खुद से ज्यादा हो सकता है, और एवरेज के लिए कम से कम 2 चाहिए, 2 चीजों का एवरेज आता है, तो एवरेज और मीन एक साथ होता है। तो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोड माइनस मीडियन दे रखा है, आप ना इसे ऐसे लिख लो 2 मीडियन प्लस मीडियन। बड़े ध्यान से देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आने के बाद ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मीन प्लस मोड। अब ना इस मीन वाले को इधर ले आते हैं और मीडियन को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड माइनस मीडियन। अब मोड माइनस मीडियन को 50 वैल्यू दे रखी है इसकी, ये वाली वैल्यू 50 दे रखी है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो पूरे में से, ठीक है, पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो ये 50 से डिवाइड होके 2 आ जाएगा 25। तो मीडियन माइनस मोड हमें निकालना है, वो आ जाएगा 25। 25 इज द आंसर। दिस इज सच अ शानदार क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। तो मैंने तो इस तरीके से याद रखा है कि मीडियन के लिए एटलीस्ट 3 चीजें चाहिए, 3 इक्वल टू 2 + 1 याद रखा, एवरेज के लिए 2 चीजें चाहिए, और मोड कौन सबसे ज्यादा है वो तो 1 से भी आ सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल है ना यार, इसमें तो क्या है, 1.275 लिख लिया, फिर देखा 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 टू द पावर -5 आएगा, सही ना यार, ये फर्स्ट ही आ रहा है शायद इसका आंसर ना, ए आ रहा है इसका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आंसर नहीं देखते, अगेन फिर से ये हमारा सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, है ना। ये हमारा, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे 680 है और लॉस परसेंट हमें दे रखा है 15। डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो यार ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। सारी वैल्यू रख दो, है ना, या क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो 800 समथिंग आ जाना चाहिए, 15 तो हट जाएगा, परसेंट लॉस परसेंट ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हमें क्या निकालना है, इट मस्ट बी सोल्ड फॉर, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो फिर से हमें वो यहीं से एक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, इसी फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो इस फॉर्मूले को, बट आप ऐसे बना लो 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट भी हमें दे रखा है यहाँ पे, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो गेन परसेंट हमें दे रखा है 15, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 800, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो यार, है ना, इसे सॉल्व कर लोगे ये आंसर आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन है और फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, इसे देख लेना है सभी बच्चों ने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, सही बात बोल दी आपने। जो अच्छा 2πr होता है ना सर्कमफ्रेंस, तो 44 है, तो यहाँ से हम r बोल सकते हैं कि वो 44/2π आ गया। पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये 2 × 22/7 होता है, तो r एक तरीके से 7 आ गया, मतलब बेस का जो रेडियस है वो 7 आ गया, और हाइट क्या दे रखा है 15, तो πr²h, पाई हो गया 22/7 × 7² × 15। यार मैं पूरा क्यों सॉल्व कर रहा हूँ यार, आप कर लो यार। 15 × 7 इज लाइक 105 × 22, ठीक है। अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, 2 × 105 इज लाइक 210 × 11, 2310, आई थिंक ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैंने खुद करी है भाई, है ना, ये 11 से मल्टीप्लाई का सिंपल फंडा होता है, दोनों को ऐड करके बीच में रख दो, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और ये हमारी एक लीनियर है।
बोला हुआ है इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 px एंड qx, अच्छा दोनों का जीरो है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, मतलब x को अगर मैं 1 डाल दूं, यहाँ पर 1 डाल दूं, यहाँ पर 1 डाल दूं, तो जीरो का मतलब दोनों की वैल्यू जीरो हो रही है। ये भी, इसमें भी x को 1 डाल दूं तो ये भी जीरो हो रहा है, तो a प्लस बी भी जीरो है। अगर a प्लस बी को यहाँ पर जीरो पुट कर दूं तो c जीरो आ रहा है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या समझ में आया सभी बच्चों को ना? तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है। जीरो का मतलब ही होता है जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू वहां से उठा के डाल दी जीरो, सी जीरो आ गया। ठीक है, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। Hey guys, I'm back again with you people, and this time I'm going to talk about the solutions, the questions of aptitude in your GTSC slot 3 exam. So first of all, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया एग्जाम guys, this is your last chance. Make sure आप इसका utilization करें properly, and you can give GTSC in the last slot as well. So with that information, let's get going with the solutions of aptitude paper. Aptitude paper में देखते हैं क्या क्या questions आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो 25255 2545 25455, इसका मतलब वो कह रहा है पैटर्न इज, एक बार पहले आखिरी में 5 दिया, सेकंड लास्ट पे 4, आखिरी में 5 सेकंड लास्ट पे 4, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा लास्ट नंबर 254545 254545। चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्काई वॉज ब्लू, अगर 1 2 3 है, सी इज ब्लू 2 4 5 है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया जो ब्लू है, ब्लू इज कॉमन क्या है इन दोनों में 2, तो ब्लू इज 2। आगे बढ़ते हैं, पीपल, यहाँ मेरे को दो पीपल दिख रहे हैं, पीपल क्या है, पीपल है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 इज कॉमन, तो पीपल इज 8, अपने आंसर में पीपल की वैल्यू 8 है। फिर अगर लाइक देखते हैं, लाइक कहाँ है, लाइक अभी सिर्फ इसमें ही है, स्काई इज कॉमन इन दीज टू, स्काई यहाँ इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 801 169, तो यहाँ पर स्काई की वैल्यू होगी 1, स्काई इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स और इन बच रहा है, इन यहाँ पर भी है, इन यहाँ पर भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 6 7 8 169 में 6 कॉमन है, दैट मींस इन इज 6, तो बर्ड्स क्या बच गया, अगर ये दोनों 1 और 6 है तो बर्ड्स इज 9। लेट्स टॉक अबाउट लाइक, अब लाइक बच रहा है हमारे पास, स्काई 1 आ चुका है, तो 8 1 है, दैट मींस लाइक इज 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, आवर आंसर इज 809। ऑल यू हैव टू जस्ट टेक द कॉमन नंबर्स, कॉमन नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न है, कुछ बेसिक नंबर्स निकालने, बहुत सिंपल सा पैटर्न, ध्यान से देखना, AA BB CC AA BB CC AA BB CC। लेट्स फिल द नंबर्स A C B A, दैट्स इट। क्या आंसर आ गया A C B A। लेट्स चेक द ऑप्शंस, क्या है हमारा A C B A इज द D ऑप्शन। नेक्स्ट वन, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस, ठीक है, मतलब पैटर्न, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है, KMF, K से रिलेटेड L, JKL, नेक्स्ट नंबर चाहिए तो R के बाद S आएगा, ML, M से पहले आता है L, तो M से पहले कौन आता है, JKL MN, L आता है, तो S L आ जाएगा SL। इस तरह से FGH, F से 2 आगे H है, तो S से 2 आगे कौन है, STU, तो हमारा आंसर आ गया SLU, विच इज ऑप्शन D, तो हमारा आंसर है D SLU। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the one word pair, number pair, letter cluster which is different from the other 3 alternatives। मतलब कि हमें अलग जो ऑड वन आउट है उसको अलग करना, लाइट हेवी ऑपोजिट्स एंटोनिम्स है, काइंड क्रूअल एंटोनिम्स, और सॉफ्ट हार्ट अगेन एंटोनिम्स, तो वेकेंट और एम्प्टी दीज आर द ओनली सिनोनिम्स ओवर हियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D, ठीक है। द फॉलोइंग वर्ड, कौन सा इनमें से ट्रिब्यूनल में नहीं निकल रहा है, बहुत सिंपल, आप सारे लेटर चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। ट्रिबल में एक ई आ रहा है, ई तो पूरे ट्रिब्यूनल में कहीं नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करना है, मतलब कि इसको जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स है वो गलत लग रहा है, हमको सही तरह से ऑपरेटर साइंस लगाने हैं, ठीक है। तो मेरे को ये दिख रहा है 6 × 3 18, और उसमें अगर 4 ऐड हो जाए तो 22 बनता है, तो 6 × 3 + 4 इज इक्वल टू 22। क्या ऑर्डर है, इनटू प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन प्लस इक्वल टू आ गया पहले ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया ए। XYZ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ओके लेट्स ड्रॉ अ सर्कुलर टेबल। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, X सिट्स ऑपोजिट टू कुक, X के सामने कुक है। नेक्स्ट बोल रहा है Y सिट्स राइट टू बार्बर, अब हो सकता है ये बार्बर हो जाए, तो मतलब कि Y यहाँ है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर बार्बर आ जाए लेकिन यहाँ पर फिर Y नहीं आ सकता, हो सकता है Y सिट्स राइट टू द बार्बर, Y सिट्स राइट टू द बार्बर, हो सकता है ये बार्बर हो जाए तो Y यहाँ पर आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पर बार्बर हो तो यहाँ Y नहीं आ सकता, हो सकता है X ही बार्बर बन जाए,
हो सकता है x ही हमारा बार्बर बन जाए, तो यहाँ पर कुक है, हो सकता है x ही बार्बर हो जाए, तो यहाँ पर y आ सकता है। ठीक है, तो क्या बोला है, y सिट्स राइट टू द बार्बर, तो अगर x बार्बर है तो y यहाँ पर, या फिर y सिट्स राइट टू द बार्बर, तो उस तक कुक हमारा y बन जाए और बार्बर यहाँ बैठ जाए, कुक हमारा y बन जाए और बार्बर हमारा यहाँ पर आ जाए, कुक बन जाए y और यहाँ पर है बार्बर। ठीक है, तो ये x आ गया है। अब क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट, x ये है और y ये हो गया है, y इज कुक। नेक्स्ट इट सेज द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, तो उसका अगर वॉशरमैन यहाँ है, ये वॉशरमैन है, तो ये ऑटोमेटिकली टेलर हो जाएगा। और वो बोल रहा है वॉशरमैन सिट्स ऑन लेफ्ट ऑफ टेलर, तो आप खुद सोचो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेफ्ट में अगर टेलर हो जाएगा तो कैसे चलेगा यहाँ पे, यहाँ पर अगर वॉशरमैन सिट्स लेफ्ट ऑन टेलर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द ओनली सिनारियो पॉसिबल। तो यहाँ पर हमें पता लग गया एक्स और वाई क्या ऑपोजिट बैठे हैं, ये लोग पक्का टेलर और कुक है, दीज आर टेलर एंड कुक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, तो द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स कलर, क्लोथ्स एंड नेचुरल फ्लावर्स। देखो ध्यान से यार, ये रहे सारे कलर्स, इसमें सारे कलर्स आ गए। हो सकता है कलर क्लोथ्स जो हो वो कलरफुल हो या फिर हो सकता है व्हाइट या ब्लैक हो जाए। तो मोस्टली मैं ऐसा बोलूंगा कि मोस्टली जो क्लोथ्स है उसमें कलर तो होगा, तो ऐसा कुछ होगा, कुछ पार्ट होगा क्लोथ्स का जो बाहर है। सिमिलरली सारे नेचुरल फ्लावर्स में से कुछ तो होंगे जो व्हाइट एंड ब्लैक है, तो वो भी कुछ बाहर आ जाएंगे। देयरफॉर ऐसा कुछ बनना चाहिए हमारा वेन डायग्राम, व्हिच इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन मार्क में क्या डाले, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। 48 को 6 से डिवाइड करोगे 8 आ रहा है, 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, तो मतलब कि 9 को किससे डिवाइड करें या किसको 9 से डिवाइड करने पे 8 आएगा, ऑब्वियसली 72। तो आंसर कितना हो गया इसका, सी ऑप्शन, दैट्स 72। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल इन द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड। आई होप सभी का पेपर अच्छा हुआ, सभी ने एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आई बिलीव क्वेश्चंस वर वेरी इजी। सो दैट्स ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, एंड मेक श्योर कि आप लोग जीटीएससी के स्लॉट 4 में अपीयर करें। बाय एवरीवन।